আমাদের রাজ্যের বহু জায়গায় ইতিমধ্যেই জল তার সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় যে ড্রেনগুলোকে স্বাভাবিকভাবে সকালবেলায় দেখা যায় বা আজকেও গেছে, সেগুলো রাত হতে হতেই কানায় কানায় পূর্ণ। অনেক জলাশয় ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। বহু জায়গায় নদী জানান দিচ্ছে সে আগের মতো শান্ত এবং স্বাভাবিক নেই। আমাদের অনেকেরই বারবার ঘুরে ফিরে গতবারের নানা স্মৃতি মনের কোনায় এসে ভিড় করছে। আপনারা যারা আজকের এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন, সরাসরি শুভ্র রাত্রির আয়োজনে, আমরা আপনাদের আমাদের রাজ্যের, আমাদের শহরের বেশ কিছু জায়গার খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখাতে চাইব এবং বলতে চাইব আপনাদের যে প্রশাসন পথে নেমে গেছে। সাধারণ মানুষ নানা জায়গায় অসহায় ইতিমধ্যেই। আমরা আতঙ্ক ছড়াবো না, আমরা কাউকেই বলবো না যে প্রশাসন প্রস্তুত নয় বা নাগরিকরা প্রস্তুত নন এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করার জন্য, কিন্তু আমরা অবশ্যই আপনাদের সকলকে বলতে চাইব যে ময়দানে নিজেদেরকে তৈরি এবং প্রস্তুত রাখতে হবে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় এই ঘটনাগুলো কিন্তু অন্যরকম ভাবে বাঁক নিতে পারে। জলের মাত্রা একটু একটু করে বেড়ে চলেছে রাজ্যের নানা জায়গাতেই। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি জনপ্রতিনিধিরা পথে নেমেছেন, আমরা দেখেছি প্রশাসনের কর্মকর্তারা পথে নেমেছেন, ক্লাব, সংস্থা, সংগঠন তাদের মতো করে বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছেন। এই অবস্থায় আমরা আপনাদেরকে আরেকবার বলতে চাই, বিষয়গুলো নিয়ে সজাগ সচেতন থাকতে হবে। ছেলেমেয়েরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদেরকে দেখে রাখতে হবে। আজকেও আমরা দেখেছি বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে এক পুত্র সন্তান সে চিরতরে ঘুমের দেশে চলে গেছে। এই বিষয়গুলোকে আজকের এই আয়োজনে আমরা রাখবো এবং প্রশাসন কোথায় কিভাবে এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করছেন তাও আপনাদেরকে একটু দেখাবো। দেখুন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যারা অফিসাররা আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কথা হয়েছে ওদের সাথে, এবং এর মধ্যেই আমি আজকে কালকে একটা মিটিংও ডাকবো। এর নিচে মানে টেলিফোনিক্যালি প্লাস ইন প্রেজেন্স তাদেরকে দেখেছিলাম, ওনাদেরকে বলেছি সব দিকে যেন নজর রাখে এবং সেইভাবে ওনারা কাজ করছে। যেসব পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের পক্ষে কি সরকার কতটুকু সাহায্য যখন হবে তখন, এখন আগের দাঁড়িয়ে কি করে বলবো যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা আমরা গত বছরও আমরা সেইভাবে আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি। যদি এরকম ঘটনা হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়েছি। अभी मोटामोटी तो पूरे कंट्रोल में है। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने कई क्रॉनिकली अफेक्टेड एरियाज में भी विजिट किया है। कई जगहों पे लोग अपने घरों से शिफ्ट हुए हैं, अपने जहाँ भी हाई स्टेशन एरिया है जहाँ भी रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई न्यूज़ नहीं है। रिलीफ सेंटर्स ऑलरेडी हमारे इनएक्टिव हैं, मतलब इन एक्शन है, एक्टिव है, और साथ ही साथ हमारी टीम भी रेडी है। हमारे पास अभी 11 टीम हमारी अपनी है और SDRS की भी 3 टीमें रेडी हैं। और कई जगहों पे पानी भराव शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी डेंजर लेवल के नीचे है। अभी हालत कैसा है हावड़ा रिवर का? हावड़ा रिवर में पानी बढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि और 3-4 घंटों में और ये पानी बढ़ेगा, लेकिन स्थिति सामान्य है, अंडर कंट्रोल है। वो इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्षय क्षति हुआ है एरिया में, आपका जो एरिया है? हाँ, जिरानिया सब डिवीजन के अंदर 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है और उन लोगों को वहां से निकाला गया है और वो अपने रिश्तेदारों के घर पे हैं और बाकी असेसमेंट फील्ड पे चल रहा है। বাবার সাথে মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু 16 বছরের কিশোরের। জিরানিয়া এক পোস্টমর্টম করার পরে এটাই একটা সিদ্ধান্তে টেন্টেটিভ একটা সিদ্ধান্ত বুঝতাম যে এটা লাইটেনিং মানে ঠাটা পড়ার জন্য এরকম হয়েছে, যেহেতু ভিতরে ইঞ্জুরি আছে, ট্রমেটিক ইঞ্জুরি, সব অর্গানই এফেক্ট হয়েছে। তার জন্য আমরা সাসপেক্ট করলাম যে এটা লাইটেনিং এর জন্য, ঠাটার জন্য হয়েছে। কবে নাগাদ মারা গেছে এটা মনে করেন? একদিন হয়ে গেছে, রাইগোমোটিভ ছিল তো নাকি 24 আওয়ার্স, মোর দেন 24 আওয়ার্স। এই যে বয়স কত? সেন্সিটিভলি 3 to 4 ইয়ার্স। মেল না ফিমেল? তার হাতে কবে মারা গেছে তো সঠিক করতে পারলাম না, তবে আজকে বাগান মালিক আইসারা দেখে পরে আমরা খবর করছি আর কি। আমরা এছাড়া খবর দেখে পরে ওই অফিসের তাদের খবর করছি, এরপর যে অবস্থা দেখে। এটা কি হাতিটা কি আলাদা ছিল না ঝুন্ডে আসছিল? না, এটা গরুবে আসলো, এটা
যখন কেমন মসজিদ তো হবে না হয়তো কাজ করতে নাই গ্রুপ কত ধরনের গ্রুপ না টোটাল 9 জন আছে মহানীপুর শালবাগান জায়গাটা ছিল দুটিয়াপাড়া আজকে 10টা-11টার সময় আমাদের যে এলিফ্যান্ট ভলেন্টিয়ার আছে তারা দুদিন কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি আপনারা দেখতেছেন তো বৃষ্টির মধ্যেই তারা এখানে হাতি দেখাশোনার দায়িত্ব যখন আইছে তখন দুটিয়াপাড়াতে হঠাৎ করে একটা তারা দেখতে পায় একটা ছোট হাতি নিয়ারলি 3 to 4 ইয়ার্স হতে পারে সেটা মারা গেছে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের যে করণীয় থাকে আমরা লোকাল প্রতি বছরই আমরা এই সময়টাতে পিক বর্ষার সিজনে আমরা একটা বন্যা পরিস্থিতি মিনি বন্যার মতো আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি বিশেষত বলতে চাই গত বছর আমাদের ত্রিপুরাতে হাইয়েস্ট লেভেল বন্যা হয়ে গেছে এবং বন্যাতে আমাদের এই জিরানিয়া সাব ডিভিশনের মধ্যে যদি ধরা যায় সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় এই বল্লাখাল এরিয়া সঙ্গে এদিকে ওল্ড আগরতলার আগে এবং এদিকে আমাদের শ্রীলঙ্কা বস্তি এবং এই টোটাল এরিয়াটা মিলে সঙ্গে চন্দ্রপুর ইনক্লুডেড। তো এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের রেস্কিউ অপারেশন প্রতি বছরের ন্যায় আমরা অলরেডি এখানে আমাদের SDRF টিম আছে যারা 10 ব্যাটালিয়ন টিএসআর অলরেডি নামানো হয়েছে। আপনার পিছিয়ে দেখতে পারবেন আপনার 10 ব্যাটালিয়ন টিএসআর অলরেডি রেস্কিউ অপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছে। আর আমাদের সঙ্গে আমাদের আবুদা মিত্র আছে, স্কাউটস এন্ড গাইডস আছে, ওরা সব মিলে আমাদের ব্রিজের ওপারে মানে হাওড়ার ওপারে যেখানে আমাদের চন্দ্রপুরের সঙ্গে মিলছে ওই জায়গাটা জলের নিচে থাকে, এই জায়গা থেকে রেস্কিউ আপনারা শুনলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের বক্তব্য, তাদের মতামত ইতিমধ্যেই সাংবাদিকদের বলেছেন। আপনারা এটাও শুনলেন যে এই বিষয়গুলো নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এবং সর্বতোভাবে জেলা প্রশাসক যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে প্রশাসন তৈরি, কিন্তু আমরা দেখছি ইতিমধ্যেই আমাদের শহরে নানা জায়গা থেকে খবর আসতে শুরু করে দিয়েছে জলের মাত্রা কিন্তু বাড়ছে। নদীর আশেপাশে যাদের বাড়ি তারা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আবার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। গতবারের মতো হবে না তো, এখনো পরিস্থিতি হয়তো বা সামাল দেওয়ার জায়গায় রয়েছে, কিন্তু আস্তে আস্তে যেভাবে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়গুলো থেকে তৎপরতা বাড়ানো হচ্ছে, যেভাবে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে, তাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থেকেই যায় যে বিষয়টি কোথায় গিয়ে শেষ হবে। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা আপনাদের সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের রাজ্য সরকারের তামাম আধিকারিকেরা কি বলেছেন সেটাও শোনাবো। পাশাপাশি আমরা বারবার করে বলতে চাইছি যে আমরা কিন্তু মাঠে ময়দানে নিজেদেরকে সচেষ্ট রাখবো, সজাগ রাখবো। দেখুন, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले करीब 2 घंटे पहले इन्होंने सिचुएशन रिव्यू की, जिसमें मैं उपस्थित था, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित थे, चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे। उसके अलावा भी वो रेगुलर टाइम पे हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने उनको ब्रीफ किया है और उन्हीं ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम जो है पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और पब्लिक को बताएं कि इस समय क्या सिचुएशन है और क्या क्या स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो 1 बजे रिपोर्ट आई थी, जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये डिप्रेशन था एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत सारी रेंज हो रही हैं, वो जो है अभी जो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ढाका से करीब 110 किलोमीटर के जो है नॉर्थ वेस्ट में अभी भी स्थित है और धीरे धीरे वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और लगभग 12 घंटे में हम आशा है IMD की रिपोर्ट के अनुसार कि धीरे धीरे और कम होता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से बहुत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत सारी जगह होनी है और साथ में कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो स्क्वेल इवेंट से जो हवा चलती है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की कुछ जगह हो सकती है, वरना 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहेंगी। और आपको बताया होगा कि आज भी जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन जो IMD ने अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया, जो नॉर्थ ईस्ट का ऊनाकोटी में, कि वहाँ पर रेड अलर्ट है। दैट मीन्स वहाँ पर वेरी हेवी रेन हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है। बाकी सब जगह में ऑरेंज अलर्ट है और जो सिचुएशन जो मेरे ख्याल से जो वह सिचुएशन थी वो ऑलरेडी ओवर हो गई है और धीरे धीरे रात में और कल दोपहर तक में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को हमको जब ये रिपोर्ट मिला था कि जो ये वेदर सिचुएशन डेवलप हो रहा था, तो उसके बाद इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स हैं और जितने हमारे रेलिवेंट लाइन डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने क्रैश मैसेज भेजा और इनको इन्फॉर्म किया। उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, 29 मई को रेड अलर्ट था
और 30 मई जो आज है वहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट था। आज जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेड अलर्ट है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो है हमने डीएम के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया और उनको प्रिपेयरनेस के लिए बताया, उनको हमने मैसेज भी दिया, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा हमने एक प्रेस रिलीज भी किया था जो आपको मिला होगा 28 मई को, जिससे कि पब्लिक तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे प्रिपेयरनेस के बेसिस पे जैसे ये सूचना मिली, इसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी एनडीआरएफ है वरना हमारे पास एसडीआरएफ और टीएसआर है, वहाँ पर तुरंत हमने उनकी टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा कि कहीं भी जरूरत पड़े तो उनको एक्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ में हम जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया है, इवन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया है कि कहीं भी जरूरत होगी तो हम लोग एकदम रेडी हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और लाइन डिपार्टमेंट जहाँ भी जरूरत है उनके साथ में ऑलरेडी टच में हूँ। और जो अभी तक जो 3 दिन में 28, 29, 30 में जो रिपोर्ट आई है, जो डैमेज रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है कि एक पर्सन जिरानिया सब डिवीजन में डाउन हो गया है। वो कैसे हुआ अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, बट जो न्यूज आई है ये हमारे पास जो खबर आई है जो हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पे आती है उसके हिसाब से एक पर्सन डाउन हुआ है। इसके अलावा 106 हाउसेज डैमेज हुए हैं, जिसमें सीवियरली 33 है और पार्टली करीब 73 है। इसके अलावा 4 रिलीफ कैंप हम लोगों ने खोले हैं, जिसमें 3 रिलीफ कैंप वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोले गए और एक खोई में खोला गया है, जिसमें 57 फैमिली रह रही हैं और जिसमें 207 लोग टोटल पर्सन से बात हुई थी। और नॉर्थ में भी ऐसी सिचुएशन कहीं पर नहीं है जहाँ पर सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हम लोग प्रिकॉशन अपने हिसाब से, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड एसओपी होता है। तो रेड अलर्ट में जो हमें एसओपी होती है कि बोट हमारी रेडी होनी चाहिए, साथ में हमारी टीम्स को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो सब हमने ऑलरेडी एक्शन ले रखा है। अगर कहीं सिचुएशन अभी तक तो वहाँ पर कोई वाटर लेवल भी कोई सिचुएशन नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम लोग एक्शन लें। जैसे कल यहाँ पर भी रेड अलर्ट था रात तक, ऐसी फॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई वेस्ट में तो वहाँ कैंप खोल दिया। हाँ नेचुरली वो काम नहीं होगा, वो तो आप देख रहे हैं जब पानी जाएगा तो उसके बाद ही क्योंकि मेरे ख्याल से वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। नेचुरली जब बारिश खत्म होगी तो भी काम करेंगे। हाँ और अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, मैं नोट कर लिया। तो मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा कि ऐसी कोई अगर है, आपका अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो सकती है ना। ठीक है थैंक यू। पिछले बार देखा जा रहा था पिछले बारिश में जो बना हुआ था, उसमें देखा गया कि जो बोर्ड मिशन वगैरह है तो कुछ बहुत जगह पर चला नहीं है, कुछ खराब हो सकता है। हाँ पोजीशन में अभी क्या है? नहीं अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इनफैक्ट एडवांस में बोट रिपेयरिंग का भी काम शुरू किया। एक्चुअली अभी तो बहुत मतलब जो डिप्रेशन हुआ तो ऐसी कोई फ्लड लाइक कोई सिचुएशन नहीं, बट हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। और आप बताएंगे कि जैसे साउथ में हमें कुछ रिक्वेशन की भी डिमांड आई थी ये परसों, तो वो भी हमने वहाँ पर प्लेस कर दी थी एडवांस में। जरूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट कोई चीज़ की ना जरूरत पड़े उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, जितनी भी बोट की जरूरत है। जो आपने बताया जैसे कहीं कुछ एक दो तो खराब कभी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ भी रिपेयर का काम है हमारा सीटीआई जो है वहाँ पर गोकुल नगर में, वहाँ पर हम रिपेयर भी करा रहे हैं और डीएम को भी इंस्ट्रक्शन है, उनको फंड भी अवेलेबल करा रखा है कि उन्होंने एडवांस में प्रिपरेशन ऑलरेडी ले रहे हैं। एक्चुअली देखिए मैं बोलूँगा जो हम लोगों की ना जैसे एनडीआरएफ की 3 टीम्स होती हैं, वो एक कुमार घाट में जो इसी डिसीजन में स्टेशन होती है और जो हमारी गोकुल नगर में स्टेशन होती है। इसके अलावा एसडीआरएफ की बहुत सारी हमारी टीम्स है, जिससे हम लोग ना एसडीआरएफ की 60 लेके एक्स्ट्रा टीम भी बना लेते हैं। और मैं फिगर नहीं देना चाहूँगा उसकी सिविल डिफेंस की, बट हमारे पास सफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास सिविल डिफेंस है हमारे पास। मेरे पास मैं फिगर एग्जैक्टली नहीं है, आपने टीम पूछा ना तो बट आपदा मित्र है, देन एनसीसी कैडेट्स हैं, देन एनएसएस है, बाहर हाँ बता दीजिए। और इनफैक्ट मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने ये रेज किया, तो एक्चुअली मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि हम ना सिविल डिफेंस को हमें केंद्र सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया था जो अपने पिछले महीने जो सिचुएशन थी उसके बाद, तो हम लोग सिविल डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की भी 2 राउंड ट्रेनिंग कर चुके हैं
हमने जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर उनके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं उनके ऑफिस के साथ में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है और उसके हिसाब से वो हमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे और हमारा होगा कि जो टारगेट होगा कि हम करीब 10,000 जो सिविल डिफेंस और लॉन्ग एक दिन में तो नहीं होगा बट उसमें हम कर लें। और इसके लिए मैं जरूर बोलूँगा कि आप कभी भी जाएं तो जितने भी यूथ हैं जो भी यूथ क्या है कोई भी जुड़ना चाहे तो सिविल डिफेंस में हमारे साथ जुड़ना चाहे तो बहुत वेलकम है। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनका लिस्ट बना के रखते हैं और जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उनको यूज़ करते हैं। और उसके लिए सिविल वॉरियर्स का एक एप्लीकेशन भी है, उसमें ऐप में जाके आप भी मतलब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जब एनरोल करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब हम आपकी ट्रेनिंग देंगे। तो उसको हम बड़े जोर तरीके से उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। थैंक यू। क्योंकि बहुत जगह विंड की वजह से हवा जो चली ना तो बहुत जगह पेड़ वोड़ गिरे और इसमें से ज़्यादातर जो प्रभावित हुए वो है पानी सागर, लॉन्ग तराई वैली, जम्पुई जिला, जिरानिया, मोहनपुर सदर, कॉर्बुक एंड सबनून जो सब डिवीजन जो वहाँ ज़्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसी खबर आती है तुरंत पावर की हमारी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जो उससे पहले जो ट्री कटिंग की टीम जो डिप्लॉय कर रखा है वो तुरंत एक्टिवेट होकर ट्री कट करती हैं। उसके बाद पावर लाइन हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो हैं वो भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और जो डैमेज हुआ है उसका भी हम लोगों ने आज से काम शुरू कर दिया है और 3-4 दिन में हम पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेंगे क्योंकि अभी भी ये क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और हो सकता है कल परसों भी कुछ डैमेज हो तो अगर कुछ होता है वो भी हम लोग उस पर काउंटिंग करते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जो रिवर जो पानी का जो लेवल है नदी में उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि हर 2 घंटे में हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं और कहीं ज़्यादा सीरियस हुआ तो 1 घंटे आधा घंटे में भी रिपोर्ट आ जाती है और इसको हमारा वाटर रिसोर्स जो PWD का डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करता है। इसके अलावा हम सेंट्रल वाटर कमीशन भी हमको रिपोर्ट देता है और लोकल जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी हम इन्फॉर्मेशन एकदम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अभी 6 PM पे जो हमें लास्ट रिपोर्ट मुझे मिली थी उसके हिसाब से हावड़ा रिवर पे 10 मीटर के पास है जो हावड़ा रिवर है और ये क्रिटिकल लेवल पे है और करीब 1-1.5 घंटे से उसी लेवल पे है और हम एक्सपेक्ट करें कि इससे ज्यादा थोड़ा। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আপনারা যে দৃশ্যগুলো দেখছেন এই দৃশ্যগুলো মোটেও আপনাদেরকে আনন্দ দেবে না। এই দৃশ্যগুলো কখনো কোনোভাবেই আপনাদেরকে নিশ্চিন্তে রাতে হয়তো বা ঘুমোতেও দেবে না। কিন্তু আমরা জানি আমাদের রাজ্যের নানা জায়গায় ইতিমধ্যেই বহু নাগরিক তারা কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তারা হয়তোবা কোনো একটি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা পাড়ার ক্লাব ঘরের শেডের নিচে রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা দেখেছি এবং ইতিমধ্যেই খবর পৌঁছেছে সংবাদ মাধ্যমে যে শহরের নানা জায়গায় জল কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে। আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা আরেকবার আপনাদেরকে বলতে চাইছি এই প্রস্তুতিগুলো আমরা যাতে নিয়ে রাখি কোথায় কখন কিভাবে জলের বিপদ সীমা বেড়ে যেতে পারে তাতে যাতে আমরা আতঙ্কিত না হয়ে পড়ি চট করে এবং নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে যাতে একে অপরের পাশে দাঁড়াই। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা বারংবার এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইছি, আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা চাইছি। और हम एक्सपेक्ट करें कि इससे ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ेगा और वरना स्टैग्नेंट है और धीरे धीरे आशा है कि कल सुबह तक ये रिड्यूस होने लगेगा। हो सकता है रात में भी रिड्यूस हो। तो देखते हैं हम लोग सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी मेजर रिवर में कहीं भी सारी जगह जो वाटर लेवल है वो बिलो क्रिटिकल लेवल है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमारा 24/7 एक्टिवेट कर जा चुका है। वहाँ पर लोग हैं, अगर कॉल करेंगे तो रिपोर्ट करेंगे और कुछ भी क्राइसिस कुछ भी सिचुएशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वहाँ रिसीव करते हैं। उसके बाद जो एक्शन लेना होता है उसको डिसमिनेट करते हैं। वेस्ट त्रिपुरा में भी चूंकि यहाँ पर हावड़ा का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया तो वहाँ भी वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी डीएम से इनफैक्ट जस्ट आने के पहले ही बात हुई तो वहाँ पर उन्होंने SDRF और NDRF की जो भी जरूरत है उसकी सफिशिएंटली मतलब टीम को रेडी करके रखा है। इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रेडी कर रखा और बोट्स भी रखें कि अगर कहीं पर कुछ घरों में अगर पानी बढ़ता हो कहीं इवैक्यूएशन कराना तो हम लोग तुरंत डिप्लॉय करने के। इसके अलावा रेनफॉल की जरूरत में बारिश नहीं हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा तो जो सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा जहाँ बारिश जो हमें रिपोर्ट आई मिली है वो सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में मोहनभोग में हुई है जहाँ करीब 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है जो रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है जिरानिया जहाँ पर 15.8 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई 24 घंटे में। और अगरतला में जरूर आप जानना चाहेंगे, आप सब लोग अगरतला में रहते हैं तो यहाँ 12 सेंटीमीटर की बारिश हमारी रिकॉर्ड हुई 24 घंटे में।
हमारा अंत में बोलना चाहूंगा कि जिस तरह आप लोग सहयोग करते हैं और पब्लिक से हमारा ये होगा कि आप सहयोग करते रहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है, विंड बहुत हवाएं चलती हैं और बारिश होती है, सॉइल लूज हो जाती है ना, तो कहीं पर गिरे ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इस समय अगर जहाँ पर भी रेड अलर्ट है या जहाँ पर बहुत भारी बारिश हो तो उस समय अपने घर पे रहें। और दूसरी चीज है, जहाँ पर भी आपको लगे कि रिवर में पानी ज्यादा जा रहा है तो वहाँ पर फिशिंग या कोई भी ऐसी काम ना करें। वैसे भी एक सेइंग है कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर वन शुड नॉट डू। तो इस समय चूंकि पानी अगर होगा तो जरूर, ये मैं जरूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से पब्लिक से, कि आप कहीं पर फिशिंग नहीं जाए, और जब भारी बारिश हो तो जरूर अपने घर के अंदर रहें। और हम लोग हमेशा तैयार हैं, किसी भी क्राइसिस के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। और अगर कुछ भी सूचना हो आप लोग हमारे सेंटर से ले सकते हैं, और हम लोग तो अपने जो इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, जो हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और हम लोग किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए रेडी हैं। অনেকেই গেছে, 80% গেছে, কিন্তু 20% আমরা তো একটা তো ডাক্তারে আছে, হসপিটালে আছে একটা এই ঘর ভাঙ্গা। আর তোমরা সংসার চালানোর জন্য তোমরা ইনকামের সোর্স কি? মধু বিক্রি করবার যায়, মানে 3 দিন থেকে বারিশের জন্য আমরা মধু বিক্রি করতে গেলাম না, এই যে খাওয়া দাওয়া কিছু হয় না, বৃষ্টির লেগে এখন মধু সংগ্রহ হয় না। কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তোমরা? আমরা ওই যে খাওয়া দাওয়া কিছু না, আমরা রাশন কার্ড আছে, আমার চাল যায় নিতে দেয় না, তো আমরা রাশন কার্ড আছে কিন্তু দেয় নাই, এখন ঘরে খাওয়ার কিছু নাই, কিছু নাই আমাদের কাছে। বৃষ্টির জন্য পাওয়া যায় না, তো বৃষ্টির জন্য কোনো মানুষ যায় না। বৃষ্টি পড়েছে, বাড়ি ঘর ভাঙে গেছে, চুলা পায় না, বাড়ি ঘর নাই, খানো খেতে পারি না, কিছু এরকম থাকি আমরা বাইরে মধ্যে। তোমরা কতজন আছে দিকে? আমরা আছি 10-12 জন আছে। লাড়িয়া তিনটা বছর আপনি 3 বছরে কত দূর হইব বড় অনুমান? বড় ধরনা একটা 2.5 গানি কইরা 2টা, আর একটা কত টাকার মাছ গেছে কাক অনুমান? কমে তো 3 লাখ, 2.5 লাখ যাই ওই পুরা বাস, মানে বাসায় লেগে গেছে না? এই জায়গাটার নাম কি দা? আপনার নাম কি? আমার নাম বিশ্বনাথ দাস। হ্যাঁ, বিশ্বনাথ দাস। জল একটু গতকালকে থেকে তো এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইতে আছে, আমরা দেখছি না, বৃষ্টি থেকে দেখতেছিলাম চিত্রকথা। আমার নাম বিজয় ভৌমিক। দিনাছে মোটামুটি এখন ধরনের সময় হয়েছে, একদম বন্যায় সত্যি জলের তলে না? জলের তলে সম্পূর্ণ। আর কি থাকিতে আছে পাত্রে? এখানে কাঁকল আছে, লাউ আছে, তাল কুমড় আছে, প্রায় সখানে কৃষকের একদম খাওয়া দাওয়া সব শেষ। বৃষ্টি। এই জায়গাটার নাম কিটা? এটা দক্ষিণ চরিলাম টেস্টিমেন্টে ধরে না? না, একটা সাইড সিবাইল আর একটা সাইড দক্ষিণ চরিলাম পঞ্চায়েত। এটা দুই পঞ্চায়েতের এরিয়া মাঝখানে। অ্যাকচুয়ালি নামটা কিটা জায়গা? এটা আমার ভালো আছে। ভালো আছে। তো এখানে কালকা বৃষ্টি হয়েছে, আজকে সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি। আর এদিকে ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া যদিও, এদিকে প্রচুর জল হচ্ছে এবং কৃষকের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। কিটা কিটা আছে এই মাঠে? মাঠে প্রায় সব ধরনের ফসলই আছে, তার মধ্যে লাউ আছে, কাঁকল আছে, বেগুন আছে, ঝিঙ্গা আছে, করলা আছে, এইসব আছে। শস্যের মধ্যে তিল আছে। সব নষ্ট হয়ে যাবে না? সব তলে তলে। মানে এই জায়গাটার নাম কিটা? এটার নাম দক্ষিণ চরিলাম বালাচরি। পঞ্চায়েতের আন্ডারে বালাচরি। আপনারা শুনছেন ইতিমধ্যেই কৃষকরা তারা দাঁড়িয়ে বলছেন কোথায় কোথায় সর্বনাশ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আপনারা শুনছেন কোথায় কোথায় ইতিমধ্যেই বাড়ি ঘরগুলো জলের তলায় চলে গেছে। আমরা জানি আমাদের এই শহর এবং রাজ্যের নানা প্রান্তে ইতিমধ্যেই জল এমন ভাবে বেড়েছে, বহু গ্রাম ইতিমধ্যেই বুঝতে শুরু করে দিয়েছে যে বন্যা পরিস্থিতি রীতিমতো চলে এসেছে। বর্ষণ আরো বাকি এবং আগামী দিনে আরো বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই অবস্থাগুলো চলবে বলে আবহাওয়াবিদরা নানাভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আমরা আজকের এই আলোচনা থেকে আমাদের সকল দর্শকদের বিনীতভাবে বলতে চাইছি, গতবার যেভাবে আমরা সবাই মাঠে ময়দানে নেমে আপনারা প্রত্যেকে যে যার মতো করে নাগরিকদের পাশে থেকেছেন, আমাদের সহনাগরিকদের পাশে আমরা থেকেছি, এবারেও তাই করতে হবে যদি কোথাও এমন দুর্যোগ বিপর্যয় চোখে পড়ে। আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা প্রশাসনকেও আরেকবার বিনীতভাবে বলতে চাই যে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়ুন, ঠিক যেমন ভাবে গতবার পড়েছিলেন।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছেন এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তারা ময়দানে রয়েছেন বলে আমরা আজ নানা জায়গায় দেখেছি। তবে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে এলাকায় এলাকায় জায়গায় জায়গায় এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করা যাবে বলে আমরা মনে করি। দেখুন কত কানি লইব এলাকাটা নালা পুকুর পর্যন্ত ছিল, সব ডুবিয়ে নিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আর কালকে থেকে আমাদের প্রচুর মানুষ বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্তের সঙ্গে জড়িত, ওদের চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারছে না, বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি। কিছু সব ফসল দিয়ে জলের তোলে, সব ফসল দেন না, রাঙ্গামাইনা নদী জলে আমার এই যে শসা, তারপরে দেয়া ঝিঙ্গা, কারকল, তারপরে দেয়া আমাদের আবার নতুন করে সরকার রিটার্ন লাগাইছিল কাউন, আমরা বাংলা ভাষা ধুন্দা কইছি কাউন, একবারে সম্পূর্ণ চলে। এরপরে লচ্ছই, মানে বিভিন্ন ফসল যা আছে সম্পূর্ণ 50 জন কৃষক আছি যেন আমরা সবাই, মানে ফসল কিচ্ছু নাই। গত বছরও সবজি যা গেল, সবজি এই ইয়াতে তো বাইরে গেল, এবারও এই বন্যায় মার গেল। এখন আমরা কৃষক চিন্তা করি এই কাজটা উত্তম পারছি না, এই বছর আবার সম্পূর্ণ শেষ। এই মানে তিল আছে না, কচু কি আছে? কচু গাছ দেখলাম জলের তলে, কচু তো জলের তলে, বিভিন্ন রকমের 5-10 রকমের সবজি আছে এই মাঠে। আপনারা কয়জন কৃষক আছেন অনুমানিক মাঠে? মনে করেন 20-25 জন কৃষক আছি। জায়গাটার নাম কি? জায়গার নাম এটা উত্তর চরিলাম ফকিরামুরা। সব শেষ আপনার না? বৃষ্টিটা কবে হয়েছে? বৃষ্টিটা তো কালকে আরম্ভ হয়েছে, অহন বন্ধ হয়েছে। এবারে শশা লাগাইছি 5 ঘন্টা, সরকার দোন্দা দিছে, ওই যে তারা কই মিলিট, আমরা কই দোন্দা দিয়ে চাষ করছি। এবার সব জলের চলে গেছে। লাউ টুকা আছে 5 ঘন্টা, এইভাবে সব এবার জলের চলে গেছে গা। গত বছরও এ শুকা খাইয়া মানে কাটাটা শুকাইছে না। হ্যাঁ, এবারও আবার এ মাই আমরা কেমনে বাঁচাম, কি করি আমরা, উপায় নেই। সরকার যদি একটু সাহায্যতা করে আমরা, মানে আমরা একটু কথাটা। প্রতিদিন গাড়িটা এখানে সবসময় রাখি, রাত্রেবেলা তুফান বৃষ্টি হয়েছে, গাড়িটা উপরে গাছ পড়ছে, মাছ 7 শেষ করতে আসলে মানুষের নিমন্ত্রণ করছি, রবিবারে খাওয়া দাওয়া করা এটাও করতে পারলাম না। আপনারা একের পর এক এই বিষয়গুলো যখন দেখছেন তখন নিশ্চিতভাবে এই বিষয়টিই মনে করছেন যে গতবার কি হয়েছিল। আপনাদের সকলের চোখে হয়তোবা গতবারের ঘটনা এবং গতবার কিভাবে সাধারণ মানুষ জায়গায় জায়গায় রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু অঞ্চলে, তা আপনারা জানেন। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা যখন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি, আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে চেয়ে এইটুকুই বলতে চাইছি, আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, দেখতে হবে, পাশে থাকতে হবে। দেখুন, ও এদিকে বন্ধু আছেন সঙ্গে, একটু কথা বলার চেষ্টা করি। কে আছেন? নমস্কার। নমস্কার, কে বলছেন? 6033439427 এই নম্বর থেকে টেলিফোন করেছিলেন বন্ধু। আপনি আরেকবার চেষ্টা করবেন, আমার মনে হয় দুর্যোগের কারণে কথা বলা গেল না। আমরা ইতিমধ্যেই আপনাদেরকে দেখিয়েছি রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আমলারা তারা ইতিমধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে, এবং শুধু তাই নয়, আমরা দেখলাম জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে রাজ্যের বিধায়করা যে যার অঞ্চলে তাদের মতো করে ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের এই অবস্থায় আপনারা যারা প্রতি রাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন, আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই এবং বিনম্রভাবে প্রতি রাতে এ কথাটাই বলতে চাই, নাগরিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা কিন্তু পালন করতে হবে, এবং তা যদি আমরা না করি তাহলে প্রতিদিন এই অবস্থাগুলো থেকে উত্তরণের কোনো মানে থাকবে না। বন্ধু আছেন সঙ্গে, কথা বলার চেষ্টা করি। কে আছেন? নমস্কার। নমস্কার, কে বলছেন? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো আবার। বন্ধু আছেন, কথা বলার চেষ্টা করি। কে আছেন? নমস্কার।
হ্যাঁ বলুন। হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বন্যার পরে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা ঠিকভাবে সার্ভে করে না, যে কারণে যাদের বাড়ি যে উঠানে জল ঢুকে তারাও 50 টাকা পায়, আর যাদের সর্বশব্দ শেষ হয় তারাও 50 টাকা। এটা একটু সার্ভে করতে হবে সরকারকে। নমস্কার। সঙ্গে থাকি, অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, গত কয়েকদিন যাবৎ যে অবিরাম বৃষ্টি, এই বর্ষণের ফলে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমাদের এই বলদাকাল অঞ্চলে দক্ষিণ আগরতলা থেকে বলদাকাল এই জায়গাটার মধ্যে জল ওঠা শুরু হয়েছে। আমরা সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমাদের এখানে শেল্টার হাউস, বোটের মানুষকে রেস্কিউ করা, সমস্ত আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ব্লক প্রশাসন, এসডিএম প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন সবার সঙ্গে কথা হয়েছে। সবাই আমরা সতর্ক আছি এবং সরজমিনী এলাকাগুলো দেখছি। এলাকাবাসীকেও বলবো আপনারা সতর্ক থাকবেন। আর একটা, প্রত্যেক বছরই যেটা সমস্যা হয় আমাদের, বিশেষ করে বলদাকাল অঞ্চলে, অন্যান্য অঞ্চলে এতটা হয় না। যেমন ওইদিকে আমাদের এই কাশীপুর অঞ্চলে ওইদিকেও হয়, বরিয়মনগর থেকে শুরু করে, কিন্তু ওইদিকে মানুষ শেল্টার হাউসে উঠে আসে। কিন্তু এইখানকার মানুষ শেল্টার হাউসে যেতে চায় না এবং শেষ সময় একটা বাড়ি যখন ডুবে যায় পুরো, তখন তাদের উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করে। এতে হয় কি, এত নৌকা তো দেওয়া যায় না। আমাদের অনেকবার আমরা খাবারও পৌঁছে দিয়েছি বাড়িতে। একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। যে কোনো বিপর্যয় মোকাবেলা করতে গেলে একটা শৃঙ্খলার দরকার এবং সেই জিনিসটা যাতে থাকে। এবারও আমি সবার কাছে আবেদন করব, আপনারাও সতর্ক থাকবেন, কারণ নদীর জল ধীরে ধীরে বাড়ছে। বৃষ্টি আর না হলেও কিন্তু উজান থেকে যদি জলের চাপ বাড়ে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই রাত্রিবেলা সমস্যা হতে পারে। আমরাও সতর্ক আছি, প্রশাসন সতর্ক আছে, আপনারাও সবাই সতর্ক থাকবেন অন্যান্যবারের মতো এবারও বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য। সকাল থেকে ভারী বর্ষণ হচ্ছে এবং সারা রাত ধরেই ভারী বর্ষণ হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি রয়েছে। নদীর জল 13.86 আমাদের বিজয় নদীর, এবং বিভিন্ন জায়গাতে গত বছরও যেটা ফ্লাডে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গাতে যেমন গোপীনগর, উত্তর রাউতখোলা, নেতাজি নগর, কেকেনগর, দুর্গানগর, কামথানা, কৈয়াঢাপা, প্রভুরামপুর, এসব জায়গাতে কিছু কিছু জায়গাতে জল জমে গেছে এবং আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা সমগ্র বিশালগড়বাসীর কাছে আমরা এই আবেদনটুকু রাখতে চাই যে আপনারা বাড়িঘরে জল সম্পূর্ণ ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আপনাদের প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্র আছে, কাগজপত্র যেগুলি আছে, সেগুলি নিয়ে আপনাদের নিকটবর্তী উঁচু স্থানে যেখানে যেখানে শেল্টার হাউস বা থাকার জন্য স্কুল রয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে, সেখানে আপনারা আশ্রয় নেন। প্রশাসন আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, সর্বদা আপনাদেরকে সাহায্যের হাত প্রশাসন বাড়িয়ে দেবে। আপনারা শুধু প্রশাসন যেভাবে আপনাদেরকে নির্দেশিকা দেবে সেই নির্দেশিকা আপনারা ফলো করুন। অযথায় কোনো গুজবে কান দেবেন না। বাড়িঘরে জল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী উঁচু স্থানে যেখানে আপনাদের শেল্টার হাউস রয়েছে সেখানে আশ্রয় নেন। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন সর্বদা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। বিশালগড়ের ডেঞ্জার লেভেল কত মিটার হলে হয়? ক্রিটিক্যাল লেভেল 14.6 কাছাকাছি, 6 to 5, 14.6 to 5 যখন যায় তখন ক্রিটিক্যাল লেভেল, ডেঞ্জার লেভেলে চলে যায়। সেই অবস্থায় আমরা 13.86 এর কাছাকাছি আমরা আছি। যদি ভারী বর্ষণ যদি না হয়, আমরা আশা করছি যে জল বাড়বে না, তবে আমরা পুরোপুরি বিষয়টার উপর নজরদারি রাখছি এবং আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা সমগ্র বিশালগড়বাসীর কাছে আমরা আবেদন করছি যে আপনারা অতি দ্রুত আমাদের কাছ থেকে নির্দেশিকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নিকটবর্তী যে আশ্রয়স্থানগুলিতে আছে সেখানে আশ্রয় নেবেন। অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে, বিশালগড়ের কি পরিস্থিতি এবং মহকুমা প্রশাসন কি প্রস্তুতি নিয়েছে? হ্যাঁ, আপনারা অলরেডি এই জিনিসটা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে 2 দিন ধরে শুরু হয়ে গেছে, যেটা আমাদের ভীষণভাবে আমরা যারা ডিজাস্টার নিয়ে সবসময় কাজ করি, আমরা অ্যাডভান্স
এটা প্রিকশন নিয়ে রেখেছিলাম যে আমাদের গত বছরের যে অভিজ্ঞতা ছিল সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা এনডিআরএফ টিম, তারপর আমরা অলরেডি এনডিআরএফ টিম চলে এসছে, নৌকা বোট সব আমরা রেডি করেছি। আমরা কনসার্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তারাও তার ফিল্ডে আছে। আমরা এখন খবর পেয়েছিলাম যে এখানে আমাদের যে নদী লাকের এদিকে, তারপরে ইয়ের দিকে যে বাঁধ আছে সে বাঁধের দিকে একটু প্রবলেম হচ্ছে, সেই জন্য আমাদের এসডিও পিডব্লিউডি এবং এসডিও ডিডব্লিউএস এর প্রতিনিধি অলরেডি ওই ফিল্ডে আছে। তারপরে আমরা এখন তড়িঘড়ি আমরা যে জায়গাতে শেল্টার হাউস আছে শেল্টার হাউসে তাদের যারা নাম্বার নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে এখন যদি কোনো ধরনের আর্জেন্সি এসে যায়, ইমার্জেন্সি যখন আমাদের ফ্লাড সিচুয়েশন ইনক্রিজ করে, আমাদের এখন যে বর্তমান যে পরিস্থিতি ডিডব্লিউএস এর যে রেকর্ড অনুযায়ী আমাদের বিশালগড় মহকুমা 13.26 আমাদের লেভেল, আর আমাদের ডেঞ্জার লেভেল আছে 14.65। সুতরাং এখন ডেঞ্জার লেভেল নিচে আছে। যদি এখনো আরো মুষলধারে বৃষ্টি হয় তবে আমাদের সেই ডেঞ্জার লেভেলটা অতিক্রম করবে। তো সেই নিরিখেই আমরা কাজ করছি। আমরা প্রশাসন সর্বত সজাগ আছি এবং আমাদের লাইন ডিপার্টমেন্টও আছে। আমরা সবাই মিলে ডিজাস্টার গত বছর যেরকম করেছিলাম এরকম করে আমরা বিশালগড়বাসীদেরকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে এবার আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করবো যাতে কোনো ধরনের কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হয়। প্রাথমিকভাবে কি কি প্রস্তুতি রয়েছে? প্রস্তুতির জন্য আমরা এনডিআরএফ আমরা বিভিন্ন রকমের ইয়েতে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী উঁচু স্থানে বর্ষা তো কি আছে, মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে গেছিল, একবার। কবে নাগাদ দিছে? এটা আমি আসছিলাম না বুঝছো, আরেকজনের মুহে আমরা প্রশ্ন শুনছি, আমি এটা না কবে দিছিল? 1 বছর আগে, 2 বছর আগে? বর্ষখানিক আগে দিয়ে গেছি। ঠিক আছে না ঠিক আছে। এটা মানে বানিয়েছিল কারা? এটা বামবন আমলে বানিয়ে দিয়ে না কেরা বানিয়েছিল? এটা বানিয়ে খুকুন দেবো না। এটা কি কৃষি দপ্তর থেকে বানিয়েছে না নিজে থেকে বানিয়েছিল? কৃষি দপ্তর পঞ্চায়েত থেকে করাইছে, কৃষি দপ্তরের লোক যোগাযোগ করে পঞ্চায়েত থেকে করাইছে। এটা 22 এই বৃষ্টি কিরকম ক্ষতির মানে জল ওঠার সম্ভাবনা বেশি? সম্ভাবনা আর কিছু আর ধরেন না, আর এরম বৃষ্টি রাত্রেবেলা এরম বৃষ্টি হলে জল নিচে করে। এই বিষয়গুলো আপনাদের দেখতে হবে এবং প্রতি রাতে আপনারা আমাদের সঙ্গে থেকে ঠিক এইভাবেই একে অপরকে দেখে রাখার প্রতিজ্ঞায় আমরা আবদ্ধ হব। তাহলেই আগামী দিন এই মোকাবেলাগুলোকে খুব সহজভাবে সামনাসামনি সত্যি অর্থেই মোকাবেলা করা যাবে। ভালো থাকবেন সবাই। আগামীকাল অন্য কোনো বিষয়ে কথা হবে। চারপাশের সমস্ত কিছু ভালো থাকুক। शुभरात्रि। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले इन्होंने सिचुएशन रिव्यू की, जिसमें मैं उपस्थित था, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित थे, चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे। उसके अलावा भी वो रेगुलर टाइम पे हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने उनको ब्रीफ किया है और उन्हीं ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम जो है पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और पब्लिक को बताएं कि इस समय क्या सिचुएशन है और क्या क्या स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो 1 बजे रिपोर्ट आई थी, जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये डिप्रेशन था एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत सारी रेन्स हो रही हैं, वो जो है अभी जो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ढाका से करीब 110 किलोमीटर के जो है नॉर्थ वेस्ट में अभी भी स्थित है और धीरे धीरे वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और लगभग 12 घंटे में हम आशा है आईएमडी की रिपोर्ट के समय की आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार कि धीरे धीरे और कम होता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से बहुत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत सारी जगह पर होनी है और साथ में कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो स्क्वेल इवेंट से जो हवा चलती है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की कुछ जगह हो सकती है, वरना 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहेंगी। और आपको बताया होगा कि आज भी जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन जो आईएमडी ने अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया, जो नॉर्थ त्रिपुरा ऊनाकोटी में, कि वहाँ पर रेड अलर्ट है। दैट मीन्स वहाँ पर वेरी हेवी रेन हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है। बाकी सब जगह में ऑरेंज अलर्ट है और जो सिचुएशन जो मेरे ख्याल से जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ऑलरेडी ओवर हो गई है और धीरे धीरे रात में और कल दोपहर तक में सिचुएशन काफी अच्छी होने की संभावना है। आपको बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को हमको जब ये रिपोर्ट मिला था कि जो ये वेदर सिचुएशन डेवलप हो रहा था, तो उसके बाद इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स हैं और जितने हमारे रेलिवेंट जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने क्रैश मैसेज भेजा और इनको इन्फॉर्म किया
उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, 29 मई को रेड अलर्ट था और 30 मई जो आज है वहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट था। आज जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेड अलर्ट है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो है हमने डीएम के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया और उनको प्रिपेयरनेस के लिए बताया, उनको हमने मैसेज भी दिया, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा हमने एक प्रेस रिलीज भी किया था जो आपको मिला होगा 28 मई को, जिससे कि पब्लिक तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे प्रिपेयरनेस के बेसिस पे जैसे ये सूचना मिली, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी एनडीआरएफ है वरना हमारे पास एसडीआरएफ और टीएसआर है, वहाँ पर तुरंत हमने उनकी टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा है कि कहीं भी जरूरत पड़े तो उनको एक्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ में हम जो ट्रेन वॉलंटियर्स हैं जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया है, इवन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया है कि कहीं भी जरूरत होगी तो हम लोग एकदम रेडी हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और लाइन डिपार्टमेंट जहाँ भी जरूरत है उनके साथ में ऑलरेडी टच में हूँ। और जो अभी तक जो 3 दिन में 28, 29, 30 में जो रिपोर्ट आई है, जो डैमेज रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है कि एक पर्सन जिरानिया सब डिवीजन में डाउन हो गया है। वो कैसे हुआ अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, पर जो न्यूज आई है ये हमारे पास जो खबर आई है जो हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पे आती है उसके हिसाब से एक पर्सन डाउन हुआ है। इसके अलावा 106 हाउसेज डैमेज हुए हैं, जिसमें सीवियरली 33 है और पार्टली करीब 73 है। इसके अलावा 4 रिलीफ कैंप हम लोगों ने खोले हैं, जिसमें 3 रिलीफ कैंप वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोले गए और एक खोई में खोला गया है, जिसमें 57 फैमिली रह रही हैं और जिसमें 207 लोग टोटल पर्सन से बात हुई थी। और नॉर्थ में भी ऐसी सिचुएशन कहीं पर नहीं है जहाँ पर सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हम लोग प्रिकॉशन अपने हिसाब से, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड एसओपी होता है। तो रेड अलर्ट में जो हमें एसओपी होती है कि बोट हमारी रेडी होनी चाहिए, साथ में हमारी टीम्स को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो सब हमने ऑलरेडी एक्शन ले रखा है। अगर कहीं सिचुएशन अभी तक तो वहाँ पर कोई वाटर लेवल भी कोई सिचुएशन नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम लोग एक्शन लें। जैसे कल यहाँ पर भी रेड अलर्ट था रात तक, ऐसी फॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई वेस्ट में तो वहाँ कैंप खोल दिया। जगह पे हवा का काम चल रहा है, हाँ बीच में थोड़ा बारिश के कारण रुक गया। हाँ, अभी तो पानी भर रहा है तो कुछ नेचुरली वो काम नहीं होगा, वो तो आप देख रहे हैं जब पानी जाएगा तो उसके बाद ही क्योंकि मेरे ख्याल से वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। नेचुरली जब बारिश खत्म होगी तो भी काम करेंगे। हाँ अभी काम तो खत्म हो जहाँ पर खुदाई करके रखा था तो पानी में हो गया ना, इसमें तो डेंजर है। और अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, मैं नोट कर लिया। तो मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा कि ऐसी कोई अगर है। आपका अच्छा पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो सकती है ना। ठीक है, थैंक यू। पिछले बार देखा जा रहा था पिछले बारिश में जो बना हुआ था, उसमें देखा जा रहा है कि जो बोर्ड मिशन वगैरह है तो कुछ बहुत जगह पर चला नहीं है, कुछ खराब हो सकता है। हाँ, इस पोजीशन में अभी क्या है? नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इनफैक्ट एडवांस में बोट रिपेयरिंग का भी काम शुरू किया। एक्चुअली अभी तो बहुत मतलब जो डिप्रेशन हुआ तो ऐसी कोई फ्लड लाइक कोई सिचुएशन नहीं, बट हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। और आप बताएंगे कि जैसे साउथ में हमें कुछ रिक्वेशन की भी डिमांड आई थी परसों, तो वो भी हमने वहाँ पर प्लेस कर दी थी एडवांस में। जरूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट कोई चीज़ की ना जरूरत पड़े उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, जितनी भी बोट की जरूरत है। जो आपने बताया जैसे कहीं कुछ 1-2 तो खराब कभी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ भी रिपेयर का काम है हमारा सीटीआई जो है वहाँ पर गोकुल नगर में, वहाँ पर हम रिपेयर भी करा रहे हैं और डीएम को भी इंस्ट्रक्शन है, उनको फंड भी अवेलेबल करा रखा है कि उन्होंने एडवांस में प्रिपरेशन ऑलरेडी ले रखी है। एक्चुअली देखिए, मैं बोलूँगा जो हम लोगों की ना जैसे एनडीआरएफ की 3 टीम्स होती हैं, वो एक कुमार घाट में जो इसी डिसीजन में स्टेशन होती है और जो हमारी गोकुल नगर में स्टेशन होती है। इसके अलावा एसडीआरएफ की बहुत सारी हमारी टीम्स है, दूसरा हम लोग ना एसडीआरएफ की 60 लेके एक्स्ट्रा टीम भी बना लेते हैं। और मैं फिगर नहीं देना चाहूँगा उसकी सिविल डिफेंस की, बट हमारे पास सफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास सिविल डिफेंस है हमारे पास। मेरे पास समय फिगर एग्जैक्टली नहीं है, आपने टीम पूछा ना तो बट आपदा मित्र है, देन एनसीसी कैडेट्स हैं, देन एनएसएस है, बात हाँ बता दीजिए। और इनफैक्ट मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने ये रेज किया, तो एक्चुअली मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि हम ना सिविल डिफेंस को, हमें केंद्र सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया था जो अपने पिछले महीने जो सिचुएशन थी उसके बाद, तो हम लोग सिविल डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं।
और उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की भी 2 राउंड ट्रेनिंग कर चुके हैं। हमने जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर उनके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं उनके ऑफिस के साथ में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है और उसके हिसाब से वो हमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे। और हमारा होगा कि जो टारगेट होगा कि हम करीब 10,000 जो सिविल डिफेंस और लॉन्ग एक दिन में तो नहीं होगा बट उसमें हम कर लें। और इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि आप कभी भी जाएं तो जितने भी यूथ हैं, जो भी यूथ क्या है, कोई भी जुड़ना चाहे तो सिविल डिफेंस में हमारे साथ जुड़ना चाहे तो बहुत वेलकम है। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनका लिस्ट बना के रखते हैं और जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उनको यूज करते हैं। और इसके लिए सिविल वॉरियर्स का एक एप्लीकेशन भी है, उसमें ऐप में जाके आप भी मतलब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जब एनरोल करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब हम आपकी ट्रेनिंग देंगे। तो उसको हम बड़े जोर तरीके से उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे विंड की वजह से हवा जो चली ना तो बहुत जगह पेड़ वोड़ गिरे और इसमें से ज्यादातर जो प्रभावित हुए वो है पानी सागर, लॉन्ग तराई वैली, जम्पुई जिला, ईरानिया, मोहनपुर सदर, कॉर्बुक, सबनूम जो सब डिवीजन जो वहाँ ज्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसी खबर आती है तुरंत पावर की हमारी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जो उससे पहले जो ट्री कटिंग की टीम जो डिप्लॉय कर रखा है वो तुरंत एक्टिवेट होकर ट्री कट करती हैं। उसके बाद पावर लाइन हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो है वो भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और जो डैमेज हुआ है उसका भी हम लोगों ने आज से काम शुरू कर दिया है और 3-4 दिन में हम पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी ये क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और हो सकता है कल परसों भी कुछ डैमेज हो, तो अगर कुछ होता है वो भी हम लोग उसका काउंटिंग करते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जैसा आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जो रिवर जो पानी का जो लेवल है नदी में उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि हर 2 घंटे में हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं और कहीं ज्यादा सीरियस हुआ तो 1 घंटे आधा घंटे में भी रिपोर्ट आ जाती है और इसको हमारा वाटर रिसोर्स जो PWD का डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करता है। इसके अलावा हम सेंट्रल वाटर कमीशन भी हमको रिपोर्ट देता है और लोकल जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी हम इन्फॉर्मेशन एकदम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अभी 6 PM पे जो हमें लास्ट रिपोर्ट मुझे मिली थी उसके हिसाब से हावड़ा रिवर पे 10 मीटर के पास है